It would be great. It would be great and convenient for me to interact, to talk to you people, because from past good evening. From because past 3-4 months, I'm like taking classes on online platforms only, and I'm quite bored now, watching myself in the screen and like watching walls in the room. So please turn on your cameras. It would be great and love to see you all. Hello, Harshit sir. Hello, hello, hello. Sir, actually, I want to join it from my PC. I'm not able to get the link, sir. So, can you please copy paste the meeting, the ID, and the password in the chat box? Yes, I'm copying and sending it in the chat. Answer, please take care of all these things. Well, we have so many people. Good to see you all. I hope, and the number is increasing. I hope you all are doing good and safe. Yes, sir, we got it. I guess it's far better now. Yeah. So before starting, good evening again, Good evening, sir. Good evening, sir. guys. Good evening, sir. Good evening, good evening, good evening, good evening. And one more thing, please keep your mics on mute. Else मेरे लिए थोड़ा सा problematic हो जाएगा. I'll try my best to convey the knowledge in both English and Hindi. And the topic of today's class is acoustics, or you can say soundproofing, or you can say room treatment, sound treatment in your room. I'll be covering so many topics in this because soundproofing, sound treatment, acoustic treatment, all of these means different in their aspect. But if you are thinking as a layman, then all these are same for you, right? I am very much sure that there are people who thinks that soundproofing, sound treatment, and the most common term is soundproofing, right? Whenever we say that we want to control the sound, so the word comes in our mind is soundproofing. Now, what does that mean to you? Soundproofing. What exactly you are looking for by this word soundproofing, right? Those who have doubts, those who want to ask something, please write in the chat box. I'll try my best to wrap up this session. I'll try my best to wrap up this session by 5:40 or 5:45 so that we can take the questions after that. So please, and most importantly, take a pen and notebook because we have so many things here. It will be good for you. And please note it down in your own language, in your own convenient way. Okay. Yes. So let's start today's class. Sound, as we are this session is in continuation to the previous one. In the previous session, we discussed about equipments we need for a studio, we need for a home studio setup. But sorry, this session is for sound treatment and sound proofing, you can say. Let's start. Whenever this term comes in your mind, जब भी हमारे दिमाग में एक ये term आता है that we need to get done this soundproofing,
By it we mean our home, our sound shouldn't travel, right? Our sound shouldn't travel from one room to another. By soundproofing we mean this, right? Now what actually it takes to soundproof our room, right? Proof means blockage in layman's term, right? Whenever we talk about waterproofing, then what does it mean? That water should not travel from first place to second place, right? Now similarly, this soundproof, for the soundproof, what do we mean? हमारा sound नहीं travel करना चाहिए, right? Now in sound we are talking about general sound. Suppose we are playing a song on a speaker and we don't want the sound to travel to another room or to another building or to another floor. What it takes to stop that, right? Now that sound has different frequencies, right? If I am speaking right now, I am in the mid range, which lies between 1k to 3k, right? Now whenever we talk about bass, whenever we talk about low end, that lies below 1000 hertz, right? वहां पर हमारी बात आती है 20 hertz से 1000 hertz तक, till 600, till or not 600, till 450 500 we call them lows, then above that we call them low mids, then above 1k we have our mid section which goes till 3.5k. Okay, then if I say like we have the sound of your anklet, you can say, or we can say clap. These are these sounds, these are like high pitch sounds. If I say now we have highs in this, right? Now if I say hello, now we have lows in this, right? So like this we differentiate between sound frequencies. Okay, so हमारे पास जो टर्म्स आते हैं साउंड प्रूफिंग में, they are isolation and sound treatment, like acoustic treatment. Give me a minute, guys, give me a minute, I'm really sorry for that. Hey guys, we'll be back in a minute. Till then, you guys have any question related to front row, and if you want the links of the previous session, I have dropped my WhatsApp number. Please text me there. I'll provide you with all the links you want. No questions, guys. He'll be back in a minute. Hi, Rakshit, you want to say something? हेलो सर। Yeah, hi, Ami. सर जैसे मेरी एक होम स्टूडियो है, हाँ जी। एक्वेस्टिक पैनल लगा है, बट वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि कारपेट हमें बिछाना चाहिए, ऐसा क्यों? Yeah, Ami, for that, Harshit will answer. I mean, he is the expert here for home studio. He'll answer this question by the end of this session. ओके। Please ask your doubts to him related to home studio and everything. But anything related to front row, you can ask me. सर होम स्टूडियो बोले जाने पर तो वही है कि साउंड हमें कैसे चेक करनी है कि हम जो होम स्टूडियो बनाए हैं वहाँ पे साउंड ठीक है या ना नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ ट्यूनर होते हैं साउंड के, तो वो हम ट्यूनर कुछ अलग ही होते हैं क्या साउंड चेक करने के लिए? आपने अपने घर में ट्रीटमेंट किया है साउंड का, एंड यू वांट टू चेक कि वहां पर साउंड ठीक है या नहीं है, राइट? यस सर। मैम, जिसने भी आपको ये बताया है कि हमारे पास ट्यूनर्स होते हैं, दे आर वेरी मच राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट. वी हैव स्पेसिफिक माइक्स एंड आई कांट सी यू, लाइक कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास गाइस? इट वुड बी ग्रेट एंड कन्वीनियंट फॉर मी. नहीं सर। Great, now good to see you. So we have specific mics which tells us
कि हमारा रूम ठीक साउंड कर रहा है या नहीं कर रहा. राइट नाउ the correct way to use that mic. Right now, external devices apart from that mic. Guys, please turn off your mics. So Just a wait, just a minute, Harshit. Just a minute. Give me a हाँ second. Yeah, please continue. हाँ जी. So हमारे पास उस माइक को यूज करने के लिए जो एक्सटर्नल इक्विपमेंट यूज होता है फिर वो भी है. Right now I'll tell you the best way to analyze whether your sound is right, whether your room is sounding right or not. Okay, we have an app, RTA analyzer. Okay, in which मैं आपको इंटरफेस भी शो कर देता हूँ. वेल दिस वाज समथिंग जो हमें बाद में करना चाहिए था, बट दिस इज अ वेरी गुड एंड important question. Now here it is. You must have Okay. seen like these kind of graphs around Yes, sound yes. engineer or in studios, like, okay, now this mic is colored. Okay, now what does that color means? If I am like talking using this mic, I might be sounding different. If I use any other mic, or if I use condenser mic, then I'll sound different, because the concept, like the hardware जो उसको साउंड को ट्रैवल करवा रहा है वो डिफरेंट हो जाएगा. राइट उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, उसका मेकिंग डिफरेंट है. सिमिलरली हमारे पास जो फोन के माइक्स हैं, ऑलमोस्ट यू ऑल हैव ऑब्जर्व दिस, एप्पल के जो डिवाइसेस में माइक आते हैं दे आर फार बेटर देन अदर स्मार्टफोन्स. राइट Yeah. ये आप सबने देखा होगा. हाँ. उसमें ऑडियो कंप्रेस्ड आता है, उसमें अगर आप लाउड ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हो तो उसमें वो डिस्टॉर्ट नहीं करता. राइट that's because they are using some kind of mic which has like good properties, good recording properties, and it's not disclosed कि उसमें कौन सी कंपनी का माइक यूज होता है. Similarly, but that won't make any much difference अगर हम लोग घर में खुद से करना चाहते हैं. So we have this RTA analyzer, right? Now if I am speaking, आप सब यहाँ देख रहे हो बीच में जो फ्रीक्वेंसी के ग्राफ्स हैं, राइट ये बीच में जो फ्रीक्वेंसी के ग्राफ्स हैं, कुछ क्लियर नहीं आ रहा होगा, शायद ये कैमरा फोकस नहीं हो रहा. RTA एनालाइजर इज द ऐप नेम. अभी आप देख रहे हो जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच का ग्राफ जो है, बीच के जो बार्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं. राइट बिकॉज आवर वोकल रेंज लाइज बिटवीन मिड फ्रीक्वेंसीज 1K to 3.5K, ये उसके अराउंड जा रहा है. नाउ इफ आई से हेलो, अब आप देखो जो इधर वाले ग्राफ्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं जो लो एंड है. राइट मतलब ऑब्वियसली आई कांट स्पीक इन 20 हर्ट्ज और लाइक बिलो 100 हर्ट्ज, बट हमारा अगर हम लोग लो एंड यूज कर रहे हैं तो हमारा यहाँ से ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जो ग्राफ हैं जो बिलो 400 है वो ऊपर जा रहा है, वो बार्स ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन लो फ्रीक्वेंसीज. नाउ इफ आई से सी, एक्सट्रीम राइट वाला बार ऊपर गया, आपको इन्वर्टेड दिख रहा होगा. राइट अभी Yes, yes. हमारे हाई फ्रीक्वेंसीज ऊपर जा रहा है. नाउ यूजिंग दिस ऐप यू कैन फिगर आउट वेदर योर रूम इज साउंडिंग गुड और नॉट. अब आपको पता कैसे चलेगा वो गुड कैसे है? ठीक है, वी हैव पिंक नॉइज जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको शायद ये कोई साउंड वाला नहीं बताएगा. जिनसे आप पूछेंगे उन्होंने आपको बोल दिया कि माइक होता है, बट वो माइक को यूज करने का तरीका या उस माइक से हम लोग उससे हम लोग पहचाने कैसे कि वो कैसा साउंड कर रहा है. राइट अगर आप कोई सॉन्ग प्ले करोगे तो सॉन्ग में तो कई सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ये ग्राफ तो आपको डिफरेंट ही मिलेगा हमेशा. अब आपको यूज क्या करना है? पिंक नॉइज. आपका जो भी स्पीकर सिस्टम है उस रूम में, आप उस स्पीकर्स पर पिंक नॉइज को प्रोजेक्ट करो. प्रेफरेबली मैं कहूंगा आप मॉनिटर स्पीकर्स यूज करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज मॉनिटर स्पीकर्स को जो ट्यून किया जाता है वो बिल्कुल फ्लैट पर किया जाता है. उसमें
आपको लो एंड बूस्टेड नहीं मिलेगा। हम लोग जो कार में स्पीकर्स सुन रहे हैं उनमें थोड़ा सा लो एंड बूस्टेड होता है, जो हम लोग घर में स्पीकर सुन रहे हैं उनमें थोड़ा सा लो एंड बूस्टेड होता है, बिकॉज whenever we talk about good speakers, the only thing comes in our mind is bass होना चाहिए स्पीकर में, bass नहीं आ रहा, right? But that's not the only thing we should look out for. A speaker should be balanced. उसमें मिड रेंज भी उतना होना चाहिए, उसमें हाइज भी उतना चाहिए होना चाहिए, राइट? इसीलिए हम लोग स्टूडियो मॉनिटर्स यूज करते हैं। स्टूडियो मॉनिटर्स फ्लैट पर ट्यून करे जाते हैं ताकि उसमें कुछ भी जब हम लोग उसमें प्रोसेसिंग करें, सॉन्ग की मिक्सिंग मास्टरिंग करें, या हम लोग उसमें कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमें कलर्ड नहीं साउंड करना चाहिए, राइट? अगर हमारे स्पीकर्स किसी भी फ्रीक्वेंसीज पर बूस्टेड होंगे तो हमारा प्रोडक्शन ओवरऑल उस वाली फ्रीक्वेंसी पे बूस्टेड आएगा, जो हमारा एंड प्रोडक्ट खराब कर देगा। Guys, this is something very important and very crucial whenever we talk about sound treatment in a room. This is the most important thing and most critical thing which comes when you get this thing done, कि हमारा रूम अब सही साउंड कर रहा है नहीं कर रहा, हम कैसे पहचाने? हमने साउंड प्रूफिंग तो करा लिया, बट वो रूम अब साउंड कैसा कर रहा है वो हमें देखना है, कैसे साउंड कर रहा है। सो दिस वाज द वे जो हम लोग माइक से यूज करते हैं, जो ट्यूनर्स आते हैं उसके स्पेसिफिक माइक्स आते हैं ट्यून करने के लिए, ठीक है? तो हम इसके थ्रू ट्यून करते हैं। आरटी एनालाइजर आप अपने फोन में डाल के, दिस इज फॉर एवरीवन, आप सब लोग आरटी एनालाइजर यूज करके अपना रूम चेक कर सकते हो वेदर दैट्स साउंडिंग फ्लैट और नॉट। The main thing you should keep in mind is आपका जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो फ्लैट आना चाहिए। जब भी आप पिंक नॉइज प्रोजेक्ट करोगे, पिंक नॉइज आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, पिंक नॉइज प्रोजेक्ट करोगे आप अपने स्पीकर से अपने रूम में, उसको प्ले करोगे तो आपको अलग अलग पॉइंट्स पे खड़े होकर फ्लैट सुनाई देना चाहिए, तब आपका रूम जो है वो प्रॉपरली ट्यून्ड माना जाएगा, ठीक है? अब वो अलग अलग पॉइंट्स पे हमने किस तरीके से साउंड प्रूफिंग करनी है वो मैं अब आपको बताऊंगा कि वो आपको कहां पर क्या चीज करनी है कि आपका रूम हर पॉइंट पे फ्लैट रिस्पॉन्स दे। कूल, गॉट इट? Yes, sir. ऑल क्लियर? Yes. Great. So I was talking about soundproofing and your this basically soundproofing हम लोग लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। Now soundproofing differentiates in two terms. One is your room treatment, one is your acoustics, second is your isolation, right? Isolation and room acoustics are all in all different. Whenever we talk about room isolation, वहां पर हमारी ये बात आती है हमारा साउंड उस रूम से बाहर नहीं आएगा। When we talk about room acoustics, that means कि हमारे रूम के अंदर साउंड जो है वो स्पीकर से डिलीवर होने के बाद रूम की प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करके चेंज ना हो। That's your room acoustics. Isolation is आपका साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा, एंड रूम अकूस्टिक्स इज कि आपके रूम में जो साउंड है वो फ्लैट साउंड करना चाहिए। जो भी आपका सॉन्ग है, सपोज अगर किसी सॉन्ग का आप ग्राफ देख रहे हो, अपने डॉ में ग्राफ देख रहे हो, जो आपका डॉ में ग्राफ आ रहा है वो आपका ग्राफ क्या आपके आरटी एनालाइजर में आ रहा है? क्या आपने जिस माइक से उसको ट्यून करने के लिए आप यूज कर रहे हो क्या उसमें आ रहा है? That's the main thing. That's how we see whether our room is changing the sound or not. Now, first we'll talk about isolation, right? Because whenever we talk about soundproofing, everyone wants to stop the sound, right? No one is concerned about how the song is changing, how the audio, how the sound of that song is changing, considering the room, considering the objects placed in a room, वो उससे कैसे चेंज हो रहा है ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा कि हमारे रूम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखने से साउंड चेंज हो जाता है। Whenever we talk about soundproofing, the only thing comes in our mind is साउंड ट्रैवल नहीं करना चाहिए,
अब साउंड ट्रैवल कैसे ना करे। हम लोग जब एक एक्वेरियम परचेज करते हैं, एक्वेरियम में सारे कॉर्नर्स बिल्कुल सील पैक्ड होते हैं, राइट। whenever we talk about isolation or whenever we consider this isolation thing for our room, try to think like we are building an aquarium, right? Because अगर एक्वेरियम में अगर जरा सा भी होल हुआ, वहां से पानी बाहर आया, your fish will die. So we have to think like that कि हमारा रूम जो है बिल्कुल उसमें वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम नहीं क्रिएट हो रहा, आपका साउंड बाहर ट्रैवल करेगा ही करेगा, राइट। अब साउंड ट्रैवल किस तरीके से करता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं। आपका जो वॉल्स हैं वो किस मटेरियल की हैं, आपकी वॉल्स की थिकनेस क्या है, आपके वॉल्स में कौन सी ब्रिक्स यूज हुई हैं, आपके वॉल्स कितने लेयर के हैं, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आउटपुट। ओके, नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आइसोलेशन, आइसोलेशन मींस हमारा साउंड बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नाउ इफ आई से आपका साउंड रुक जाएगा, बट जो आपका लो एंड है, जो आपका बेस है, वो दूसरे रूम में जाएगा। जब आपने रूम में वैक्यूम भी क्रिएट कर दिया, फिर भी आपका लो एंड ट्रेवल कर रहा है। हाउ, कभी आपने ये चीज सोची है? जब हम लोग अपने घर में कोई भी म्यूजिक सिस्टम प्ले करते हैं, आप दूसरे फ्लोर पर जाएंगे, आपको वोकल्स नहीं सुनाई देंगे, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं सुनाई देगा। द ओनली थिंग यू विल हियर इज बेस एंड वाइब्रेशंस, बिकॉज वाइब्रेशन को ट्रैवल करने के लिए सिर्फ एक कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, राइट। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लो एंड, हम लोग कार में भी अपने सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं, घर में भी इंस्टॉल करते हैं। हम लोग जब भी लो एंड की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट द लो फ्रीक्वेंसीज। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लो एंड, वहां पर एक और चीज ऐड ऑन हो जाती है, विच इज योर एयर प्रेशर, राइट। स्पीकर एक एयर प्रेशर भी डिलीवर करता है, एयर प्रेशर प्रोड्यूस करता है एक रूम में, जो ट्रैवल करता है, विच इज योर लो एंड। ओके, अब जो आपका लो एंड है उसको कैसे रोकना है, एक ये भी हमारे पास टास्क है। आपके मिड्स और हाइस तो रुक जाएंगे। इनफैक्ट जो मेरे पीछे लगा हुआ है फोम, जो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, if all of you can see, if all of you are doing any other activity, please pay attention here at my screen, and it would be good if you guys can turn on your cameras. There are so many good faces, beautiful faces. Yeah, अब अच्छा लग रहा है मेरे थोड़ा सा, और बाकी लोग भी ऑन कर लो। Now as you can see, I have installed an acoustic foam behind me. कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मेरा सजेशन इसके लिए कभी भी नहीं रहेगा। मेरी विजन में ये चीज 0 मार्क्स लेती है, बिकॉज इसके अंदर साउंड ट्रांसमिट करने की प्रॉपर्टीज हैं, ये रोकेगा नहीं। इसमें सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, आपका जो रूम में रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये अनइवन शेप है, पिरामिड है, राइट। आपका रूम में साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तक ये अब्सॉर्ब करेगा, बट इसमें हाई फ्रीक्वेंसीज जनरली ज्यादा अब्सॉर्ब होंगी कंसिडरिंग टू लो फ्रीक्वेंसीज। Okay, so that's all we have to consider whenever we talk about soundproofing. Isolation, acoustic treatments, acoustics in your room which are for sound balancing. Then your material comes. अब मैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। इफ यू हैव अ लाइक वेरी गुड बजट, देन व्हाट यू कैन डू इन दैट बजट। इफ यू हैव लाइक अ मिनिमल काइंड ऑफ बजट, तो आप उसमें क्या कर सकते हो। एंड वन मोर, इफ यू आर स्टेइंग इन ए रेंटेड अपार्टमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। टेक पेन एंड नोटबुक, बिकॉज आई विल बी लाइक narrating all the things in a very speedy way. So the materials used for acoustic treatment: rock wool, glass wool, foam. This acoustic foam I am talking about, हम लोगों का जो नॉर्मल फोम होता है, हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, but I am talking about this foam right now. Then your household items. आपने कभी स्टूडियो में देखा, हमेशा जो डेस्क होता है उसके पीछे एक सोफा होता है,
राइट? वो सोफे का रीजन क्या है, कभी ये चीज सोची आपने? रूम आइटम्स में सोफा है, बेड है, बुक शेल्फ है, कई स्टूडियोज में आप बुक शेल्फ भी देखोगे, राइट? एंड स्पेशली इन दी कंसोल रूम, और रिकॉर्डिंग रूम में भी आप देखोगे, बट दैट डिपेंड्स ऑन दी प्रोड्यूसर एंड दी साउंड डिजाइनर, वो क्या यूज करते हैं, उस रूम को किस तरीके से ट्यून करते हैं, कंसिडरिंग द इंटीरियर्स एज वेल. एंड द लास्ट थिंग इज योर कर्टेन्स. Okay, now why do we use rock wool and glass wool? What's the best thing to use and what's the long lasting? Rock wool and glass wool are the most preferable items, most preferable objects we use for sound treatment. Now why do we use them? Because they have like sound absorbing properties. They stop the sound to travel from one room to another. So this glass wool and rock wool comes in different properties, okay, like in density. I'm talking about density right now. We have 50 kg per meter cube and 100 kg per meter cube. Two kind of rock pools are available in the market standard. If you get like more than 100, that's good, but 50 और 100 आपको एक स्टैंडर्ड मार्केट में मिलेगा ही मिलेगा. 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट? नाउ रॉक वूल और ग्लास वूल हम लोग क्यों यूज करते हैं? दे हैव द साउंड अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टीज एंड साउंड को ट्रांसमिट नहीं करते. वो लोग वहां पर साउंड को एक एज ए साउंड बैरियर काम करते हैं. व्हाई? बिकॉज उनका डेंसिटी बहुत ज्यादा है. एंड whenever we have to stop the reflection of sound, तो हमको वहां पर क्या चीज यूज करनी है? कोई सॉफ्ट चीज यूज करनी है. हम हार्ड सरफेस नहीं यूज कर सकते एक स्टूडियो में अनलेस एंड अनटिल हम लोगों को रिफ्लेक्शन चाहिए वहां से. रॉक वूल प्रेफरेबल रहता है. बाय बिकॉज उसमें आपको वो फायर प्रूफ है, उसमें आपको जो फायर प्रूफ का प्रॉपर्टी मिलता है वो उसका टेम्परेचर वो ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है, उस फायर प्रूफ होता है. सेकेंड थिंग, ग्लास वूल से ज्यादा हम लोग रॉक वूल को क्यों प्रेफरेंस देते हैं? बिकॉज रॉक वूल में आपका अगर वाटर आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनर और बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी रीजन, तो उसमें वाटर को ट्रांसमिट करने की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वाटर एवेपोरेट हो जाता है, तो उसमें फंजाई नहीं लगता, आपका रॉक वूल खराब नहीं होता. बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड कीप ऑन लाइक स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द rock wool, and if we want to clean the studio, then we are taking a pipe and cleaning the studio like this, pouring water on the rock wool. So rock wool is more preferable than glass wool. Now glass wool किस तरीके से advantageous है comparatively to rock wool? First advantage, glass wool is comparatively cheaper. Okay, glass wool is comparatively cheaper than rock wool. And second advantage, glass wool comes in a roll. ग्लास वूल आपके पास एक रोल में आएगा, और जो रॉक वूल है, रॉक वूल आपके पास ब्रिक्स में आएगा, लाइक बड़े बड़े ब्रिक्स ऐसे बार्स होंगे उसमें आएगा आपके पास. ग्लास वूल को आप किसी भी शेप पर मोल्ड कर सकते हो, बट रॉक वूल का आपके पास ब्रिक होगा, सो आपके पास वहां पर थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाएगा. इफ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक इन कर्व, आप उसको कुछ रिफ्लेक्शन और साउंड डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्व भी देना चाहते हो, साथ ही साथ आप उसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी देना चाहते हो, तो उसके लिए ग्लास वूल इज बेटर. रॉक वूल में आपके पास लिमिटेशंस हो जाएंगे, आप उसको कर्व नहीं कर पाओगे. ओके, रॉक वूल और ग्लास वूल प्रेफरेबली यूज किया जाता है. नाउ एज यू ऑल कैन सी, आई हैव अ पैनल हियर, राइट? आई हैव यूज्ड रॉक वूल इन दैट foam. This is just like, this is my rented studio, that's why I am not using like the rock wools and all on the wall. I have another room which is like totally soundproof. I'll show you just after this thing. हमने उसमें रॉक वूल यूज किया, यहाँ पे सिर्फ है बिकॉज एज यू कैन सी द हाइट ऑफ दिस रूम इज वेरी स्मॉल. इसका मतलब यहाँ पे रूम में ऑलरेडी मिड्स और हाइज को ट्रैवल करने के लिए स्पेस नहीं है, मेरे पास हेडरूम नहीं है, राइट? बट यहाँ पर लो एंड ट्रैप हो जाएगा बिकॉज दिस इज स्मॉल. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अकूस्टिक फोम. आपके पास चार चीजें हैं: फोम,
रॉक वूल, ग्लास वूल एंड योर फोर्थ वन इज योर कर्टेन्स। ठीक है, ये बात होगी हमारी अकूस्टिक ट्रीटमेंट करने की। आइसोलेशन के लिए मैं आपको आइडियाज दे देता हूँ आप क्या क्या यूज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट इट डाउन बिकॉज दीज आर समथिंग कि आपको याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा बाद में। आप प्लीज लिख लो इसको साथ साथ। अगर आपके घर में जो वॉल्स हैं वो सिंगल ब्रिक से बनी है तो वहां से साउंड ट्रैवल करेगा। बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट आइसोलेशन, आइसोलेशन के लिए इजिएस्ट वे होता है मास, वेट। जो मास होता है वो ज्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ और भी तरीके हैं वो मैं बताऊंगा। बट अगर आपका फर्स्ट सिंगल ब्रिक वॉल है और आपको कंप्लीटली साउंड को रोकना है तो आपको अंदर एक फॉल्स वॉल बनाना पड़ेगा। सीमेंटेड नहीं बनाएंगे हम लोग, ब्रिक से नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे Guys, can you mute your mics, please? If you have any doubt, please ask in the end or write in the chat box. And hi to the person whomsoever was doing this. So, if we want to isolate our room, तो हम लोग सिंगल ब्रिक का वॉल है तो उसमें हम लोग एक फॉल्स वॉल बनाएंगे। फॉल्स वॉल कैसे बनेगा? हमको 2 इंचेस और 3 इंचेस का एयर गैप छोड़कर या तो जिप्सम बोर्ड यूज करना है या फिर हम लोग वुड यूज कर सकते हैं, विच विल बी माउंटेड ऑन फ्रेम्स। हम लोग वुड के फ्रेम्स बनाएंगे, वॉल पर उसको माउंट करके उसमें एयर गैप देंगे हम लोग 2-3 इंचेस का, जो वहां पर वैक्यूम क्रिएट करेगा जहां पर आपका साउंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, नाउ दैट्स योर ओन कॉल। अगर आप उसको जिप्सम बोर्ड से बनाना चाहते हैं या आप वुड से बनाना चाहते हैं। जिप्सम से बनाने का क्या फायदा होगा? जिप्सम की डेंसिटी ज्यादा होती है, जो प्लास्टर बोर्ड होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर हम लोग वुड से बनाते हैं उसका डेंसिटी कम है, बट जिप्सम बोर्ड आपका वाटर गिरने से खराब हो जाएगा, वुडन बोर्ड नहीं खराब होगा। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करा, साउंड कुछ हद तक वहां पर रुक गया। सपोज आई से 15 dB वहां पर ब्लॉक हो गया साउंड। अब उसके बाद हमको अंदर ट्रीटमेंट करना है। हम लोग वुडन फ्रेम्स के बाद एक और फ्रेमिंग करेंगे, उसके अंदर हम लोग रॉक वूल भरेंगे जिसके ऊपर हमारा क्लॉथ आएगा। दिस वॉज द सोल्यूशन अगर आप अपनी सारी वॉल्स को कवर करना चाहते हो, और बेस्ट यही है। अगर आप जितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हो, रिफ्लेक्शन जहां से आपको लगता है हो सकता है आप उस एरिया को कवर कर दो, दैट्स द बेस्ट। ठीक है, दिस इज अबाउट आइसोलेशन। नाउ हमारा प्रेफरेंस किस चीज को देना चाहिए अगर हम लोगों को स्टूडियो बनाना है? तो इधर बेसमेंट और योर टॉप फ्लोर और योर टेरेस। बिकॉज हम लोग बेसमेंट में बनाएंगे तो उसमें हमारे पास किसका कॉस्ट कटिंग होगा? फ्लोरिंग का, बिकॉज उसके नीचे कुछ भी नहीं है। और जब हम लोग टेरेस पर बनाएंगे तो हमारे पास सीलिंग का कॉस्ट कटिंग हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दोज टू things, basement and your terrace, if you have the whole building. If you have your own building जिसमें आपके पास basement या terrace का option है, first preference आप basement को देना। If you don't have the basement, if you are living on the top floor, then give preference to the terrace. ठीक है, now हम लोग साउंड प्रूफिंग अंदर जो अकूस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या कंसिडर करके करते हैं और उसमें हम लोग क्या चीजें देखते हैं, राइट? फर्स्ट, ये पैनल्स, अगर हम लोग पूरे वॉल्स नहीं कवर कर रहे तो हमारे पास पैनल्स का रिक्वायरमेंट आता है। पैनल्स को कैसे बनाना है? पैनल्स को हमने वुडन फ्रेम बना के उसके अंदर रॉक वूल और ग्लास वूल को फिल इन किया, उसके ऊपर क्लोथ करा, यू आर डन विद योर पैनल, राइट? बट do it on your own if you are good at doing something like this carpentry work and all. Okay, if you are not good at them, don't do that, else you will hurt yourself. पैनल्स आ गया। अब मैं बात करता हूँ रूम में अकूस्टिक्स करने के लिए मोबाइल सेटअप की। कर्टेन्स, बेस्ट एंड द एफिशिएंट वे टू गेट योर रूम ट्रीटेड। अगर आप कर्टेन्स अपने सारे वॉल्स को कर्टेन से कवर कर देते हो
you will see a drastic change in your room, you will see a drastic change in the sound of your room, because वहां पर रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा. नाउ कर्टेन्स कम्स इन टू साइजेस, 7 फीट एंड 9 फीट. उसके अलावा आप कस्टमाइज करवा सकते हो इफ यू हैव अ गुड कॉन्टैक्ट विद एनी पर्सन हु डील्स इन कर्टेन्स. बट अगर आपके पास 7 फीट और 9 फीट का है, और आपके सपोज स्टैंडर्ड रूम का जो एक विड्थ होता है, या इफ आई कंसिडर अ रूम ऑफ 10 बाय 10 फीट, तो 10 फीट में हम लोग 4 कर्टेन्स यूज करेंगे. ठीक है, बिकॉज कर्टेन्स यूज करने के पीछे जो हमारा मोटिव होना चाहिए, उसमें फ्लैट नहीं होगा कर्टेन, आपके उसमें रिंकल्स रहने चाहिए, which will help in absorption as well as some kind of reflection. ठीक है. नाउ आपका रूम का जो प्लेसमेंट है, आपको अपना डेस्क कहाँ पे रखना है, आपको साउंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहाँ मिलने वाला है, आपके रूम का स्वीट स्पॉट कहाँ है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडियो कभी भी अपना स्क्वायर रूम में नहीं बिल्ड करेंगे हम लोग. आपका रूम जितना अनइवन होगा उतना बेटर आपका रूम साउंड करेगा. एक स्क्वायर रूम में हम लोग नहीं करेंगे, वो हमारा बिल्कुल लास्ट प्रेफरेंस होना चाहिए जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. रेक्टेंगुलर रूम गुड फॉर गो, गुड टू गो. एंड अगर आपके पास और कोई शेप है, लाइक किसी का कॉर्नर फ्लैट है, कॉर्नर आपका बिल्डिंग है, तो वहां पर कुछ और शेप होगा, बट स्क्वायर को अवॉइड करना. तो अगर हम लोग बात करें 20x10 के रूम की, आई एम कमिंग ऑन द वोकल बूथ पार्ट, आई विल शो द इमेजेस, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल. अगर हम लोग बात करें रूम में डेस्क प्लेसमेंट की, तो आप अपने रूम में जो सबसे बड़ा वॉल है, 20 फीट वाला वॉल है, उसका सेंटर चूज करिए. ठीक है, उसका सेंटर चूज करोगे, या अगर आप 10 फीट चूज करना चाहते हैं आप वो भी चूज कर सकते हैं, बट आपका जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे होगा. अगर आपने 20 फीट, सपोज योर रूम इज लाइक 20 फीट बाय 10, आपने 20 फीट ऐसे है, और आपने 10 फीट वाली साइड पे 10 फीट वाली वॉल आपकी पीछे आ रही है, और आपने वहां पे डेस्क प्लेस करना है, तो आपका 40% डिस्टेंस फ्रॉम दैट 10 फीट वाला वॉल, तो 20 फीट का आपका 40% कितना हो जाएगा, 8 फीट. 8 फीट पे आपको अपना सिटिंग पोजीशन रखना है. ठीक है, वो आपका स्वीट स्पॉट है, वो आपका बेस्ट स्पॉट है रूम के साउंड को एनालाइज करने के लिए, रूम के अंदर मिक्स करने के लिए 40% फ्रॉम दी वॉल. ठीक है, जो आपका सिटिंग पोजीशन है. नाउ हम लोग किस तरीके से प्लेसमेंट करें, किस तरीके से साउंड प्रूफिंग करें, राइट. मैं कुछ आपको इमेजेस दिखा देता हूं जो मेरे पास हैं यहाँ पर ऑलरेडी. First, I am showing the placement of रूम, कि हम लोग रूम में प्लेसमेंट किस तरीके से करने वाले हैं. ठीक है, here it is. Please take the screenshot of this picture. आपको बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. As you all can see, we have corner bass traps at the back side of this your speakers. उसके बाद सीलिंग्स में यहाँ पर माउंटेड हैं पैनल्स. पीछे आपके पास ये डिफ्यूजर्स हैं, मैं डिफ्यूजर्स दिखाता हूँ अभी क्या होते हैं हमारे पास. उसके बाद यहाँ पर आपके फ्लैट पैनल्स हैं कॉर्नर्स पर. ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी आपका कॉर्नर को किल किया हुआ है, ऊपर सामने फ्रंट में, पीछे भी किल किया हुआ है. ठीक है, लाइक दिस we have covered like almost 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स ऑफ योर रूम. यहाँ पर हमने बेस ट्रैप नहीं बनाया. यहाँ पर हमारे जो पैनल्स है मैं वो बताऊंगा. हम लोग अगर बेस ट्रैप्स नहीं इंस्टॉल करना चाहते कॉर्नर्स में, तो हमारे पैनल्स का थिकनेस क्या होना चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो ये 2 पैनल्स आए हैं, ये स्पीकर के साइड में है, राइट. नाउ ये स्पीकर के साइड में इसका प्लेसमेंट कैसे आया,
मैं अब आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। Here we have, and here it is. Please take the screenshot of the images I am showing you right now, because these are something which you might need. अरे अरे अरे, thank you so much, but right now we are doing our class, please. So हमारे पास जो स्पीकर्स का प्लेसमेंट है और जो पैनल आया है, राइट, जो हमारे पास पैनल्स हैं ये किस तरीके से प्लेस्ड हैं। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर एक स्पीकर का डायग्राम बना हुआ है। स्पीकर के डायग्राम से यहाँ पर रेज शो करिए, राइट। अब ये that's totally fine, I respect your feelings, but please let us complete the class first. Whomsoever is doing this, I guess Pratika. So yes, we have like arrows, as you all can see, we have red arrows here. आपका जो अब रेड, ये जो आपके पास ये एरोज हैं, ये एक्चुअल में क्या है, अब आप इसको कैसे देख सकते हो, प्लेसमेंट कैसे देख सकते हो। आपने अपने रूम में स्पीकर का प्लेसमेंट, मैंने बताया 40% आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वहां से आप अपना, यस 40% एंड्रयू, एब्सोल्युटली। आप 40% पे जब बैठोगे, आपके जो स्पीकर्स आएंगे, स्पीकर का प्लेसमेंट रखने, जो स्पीकर्स का प्लेसमेंट है, जो स्पीकर का डायग्राम है, जो उसका कोन है, वहां से आपको लाइट एमिट करना है। यस, मिरर यूज करना है हमको, वहां पर लाइट एमिट करना है वहां से, एंड उसके साथ साथ मिरर यूज करना है। अब आपने अपना मिरर उसके साइड वॉल पर लेकर स्लाइड करना है। आप मिरर को स्लाइड करोगे, आपका जैसे ही वहां पर डायग्राम शो होता है, आपको जो उसका कोन है स्पीकर का, आपको जैसे ही वहां पर वो शो होगा, आपका वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। वहां पर आपका फर्स्ट पैनल आएगा। उसके बाद आपको स्पीकर से टॉर्च को एमिट करना है मिरर पर। आप जब मिरर पर आपका टॉर्च रिफ्लेक्ट करेगा, और उसके बाद जब आपका दूसरी जगह जहां उसका सेकंड आपको टॉर्च का प्लेसमेंट दिखता है, जो लाइट जहां पर आपका फॉल होता है, दैट्स योर सेकंड रिफ्लेक्शन पॉइंट, राइट। आप तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप अगर पूरा रूम कवर कर लोगे, दैट विल बी लाइक द बेस्ट एंड दैट्स द मोस्ट रिकमेंडेड इफ यू वांट टू ट्रीट योर रूम। बट इफ यू कांट, तो आप 2-3 रिफ्लेक्शन पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हो, उसमें आपके रूम में काफी सारा एरिया कवर हो जाएगा पैनल से। अब मैंने उस इससे पहले वाले एक स्लाइड में दिखाया आपको, कॉर्नर में बेस ट्रैप्स नहीं थे कॉर्नर में, पर पीछे 2 फ्लैट पैनल्स थे, राइट। अब वहां पर आपको क्या थिकनेस रखना है, आई वुड से इंस्टॉल एटलीस्ट 4 इंचेस पैनल, जो उसका थिकनेस है, जो उसका डेप्थ है, वो 4 इंचेस होना चाहिए, ताकि वहां पर बेस अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो। अगर आप कॉर्नर में बेस ट्रैप्स नहीं लगाना चाहते, अगर आप कॉर्नर में बेस ट्रैप्स लगाते हो, गुड इनफ, आपका लो एंड ट्रैवल नहीं करेगा। अब हम लोग कॉर्नर में ही क्यों बेस ट्रैप लगा रहे हैं, हम लोग बेस ट्रैप और कहीं के लिए क्यों नहीं बात कर रहे। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट बेस ट्रैप, वी आर सेइंग दैट वी शुड इंस्टॉल आवर बेस ट्रैप्स इन कॉर्नर, राइट। बिकॉज जब भी हम लोग एक लो एंड को सुनते हैं, लो एंड कॉर्नर में ट्रैप हो जाता है, बिकॉज लो एंड का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है मिड और हाई से। लो एंड कॉर्नर में ट्रैप होकर वहीं पे वो फ्रीक्वेंसीज टकराती रहती हैं। After this class, put on your song, play a song on your speakers, and try to listen it at different spots in the room. आप सेंटर में सुनोगे रूम के, डिफरेंट साउंड आएगा, कॉर्नर्स में सुनोगे आपको बेस ज्यादा मिलेगा, आप किसी सोफा या किसी चीज के ऊपर चढ़कर सुनोगे, आपको मिड्स और हाईज अच्छे मिलेंगे, ठीक है।
ये चीज आप लोग करके देखना, एंड दिस इज द वे, दिस इज द बेस्ट वे वी यू लाइक, this is the way we install panels and we now वोकल बूथ, मेरे पास वोकल बूथ का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है, एज आई कैन सी वी हैव सो मेनी वोकलिस्ट हियर। अब वोकल बूथ में आप क्या कर सकते हो, आपका जो बजट है वो कम है तो क्या करोगे? हियर इट इज, यस, वोकल बूथ। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया, इसके अंदर हमने अकूस्टिक फोम लगाया, रिफ्लेक्शंस कट हुए, पीछे से रिफ्लेक्शन कट हुए, ठीक है। हाँ, गरीब वाला सेटअप है ये, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट जो लोग रेंट पे रहते हैं, आई वुड से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर, बिकॉज ऑलवेज प्ले स्मार्ट, डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। सो एक वोकल बूथ हमारे पास ये हो गया। नाउ I am coming to all the points. Wait a minute. Vocal booth, wooden वाला भी आ गया आपका। Guys, if you want to know about the equipments, we will be covering the equipments in our next session. So please attend that if you haven't attended my previous session, because I discussed about the equipments in the last session. If you want to know about the equipments, attend our next session. Here I have the wooden vocal booth. The image is not that clear, but if you have like some kind of low budget, आप अपने घर में ये वाला वोकल बूथ भी बना सकते हो, जिसमें आपको वुडन का आप एक छोटा सा कैबिन बनाएंगे, इसको पूरा ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपको इसमें भी बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। इसमें आप आइल से कि आप इसमें रॉक वूल यूज करो, अकूस्टिक जो पीछे मेरे पास फोम है, वेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मत यूज करना, बिकॉज दैट विल सक ऑल दी हाइज, आपका टोनल क्वालिटी खराब हो जाएगा, वोकल्स ठीक से नहीं आएंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा रॉक वूल को यूज करना, एंड 2 इंचेस तक ही यूज करना, 2, ज्यादा नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव वोकल बूथ हो गया। अब अगर आपको फ्लोर करना है और उसका इफेक्टिव वे क्या है और चीपेस्ट वे क्या है, here I have, oops, my, here it is. Now this is your PU foam. PU foam जो है ये आपको थोड़ा सा हार्ड मिलेगा कंपैरेटिवली टू अदर फोम मटेरियल। PU फोम आप अपने फ्लोरिंग पर यूज कर सकते हो, इससे आपके फ्लोर पे कुशनिंग हो जाएगा। इसके ऊपर आप कारपेट यूज कर सकते हो, जिससे आपके रिफ्लेक्शंस खत्म हो जाएंगे। बाय दिस यू विल क्रिएट अ फॉल्स फ्लोर यूजिंग दिस। ये डैम्प भी नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। दिस इज लाइक हार्ड, और जो आपके हार्ड मैट्रेसेस आते हैं उसमें ये होता है, ठीक है। पीयू फोम हो गया। पीयू फोम आप अब जो आपका साउंड प्रूफिंग आप कर रहे हो रूम में, आपको हमेशा ग्लास वूल यूज करते हो आप या फिर आप रॉक वूल यूज करते हो, उसके ऊपर आपको पीयू फोम जरूर इंस्टॉल करना है, बिकॉज आप जब जो आपका रॉक वूल और ग्लास वूल है वो कार्सिनोजेनिक है, उसमें दूसरा ग्लास पार्टिकल्स है विच हैज इचिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसके ऊपर हमको पीयू फोम यूज करना है। इसका बहुत पतला शीट आता है, रोल आता है, आप उसके फोम के ऊपर ये जरूर यूज करना, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि हमारे पास कोई क्लाइंट है उसको इचिंग हो, या आप खुद बैठे हो या आपको इचिंग हो, एंड
मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब भी हम लोग एक वॉल के साथ लीन ऑन होकर बैठते हैं तो उसमें वो एक डैम्प हो जाएगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप पीयू फोम यूज करना। एंड देन कम्स कि आप साउंड प्रूफ करने के लिए आप उसमें कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल करते हो। ऑलवेज यूज स्प्लिट एसी नॉट विंडोज, बिकॉज विंडो में आपका बाहर से साउंड ट्रैवल कर सकता है, स्प्लिट में वो चीज बिल्कुल कट हो जाती है। पाइप के थ्रू आपका बाहर से वेंटिलेशन भी होगा और कोल्ड एयर भी आएगा। वी यूज स्प्लिट एसीज बिकॉज ऑफ दैट रीजन। उसके अलावा जहां पर पूरा डक्ट सिस्टम क्रिएट होता है उसमें जो उसके पाइप्स होते हैं ट्रैवल करने वाले, उसमें ग्लास होल यूज होता है जहां पर आपका साउंड ट्रैवल नहीं करता, नॉट ऑफ द कंप्रेसर, और आपका साउंड वहां से जो आपका स्टूडियो का साउंड है वो भी ट्रैवल नहीं करता क्योंकि वो पाइप में कट हो जाता है। अब वो कट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। आपको ये शायद नहीं पता होगा और आपको कोई शायद बताए भी ना। दिस इज योर बैफल बॉक्स, द चीट कोड to save your electricity bill, to keep your room fresh with fresh air. Okay, अब आप यहाँ पर बैफल बॉक्स जब यूज करोगे, बैफल बॉक्स को यूज करने का क्या तरीका है? देखो इसके अंदर फोम इंस्टॉल किया है, एक आउटलेट यहाँ पे है, एक आउटलेट यहाँ पर है। ओके, whomsoever is writing all these things, please stop it. And I really appreciate, Yami ma'am, you have great fans that they are writing again and again for you. गाइस प्लीज स्टॉप दिस। आप कुछ सीख लो, बाद में आप एक दूसरे की फैन फॉलोइंग इंक्रीज कर लेना। नाउ हियर वी हैव द बैफल बॉक्स जिसमें एक इनलेट है और एक आउटलेट है। ठीक है, अब इनलेट से आपके पास एयर आ रहा है और आउटलेट से आपके रूम में जा रहा है। बैफल बॉक्स के अंदर फोम क्यों यूज किया? क्योंकि जब हमारे पास एयर आ रहा है, जब भी हम लोग फैन इंस्टॉल करते हैं उससे एक नॉइज आता है विच इज योर व्हाइट नॉइज, राइट। व्हाइट नॉइज को खत्म कैसे करना है? आप रूम में विदाउट फैन साउंड को सुनना और विद फैन साउंड सुनना, यू विल सी अ मेजर डिफरेंस देयर ऑल्सो। उस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर अंदर फोम यूज कर रहे हैं, राइट। अरे बाबा प्लीज मत करो, फोम यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग यहाँ पर साउंड को खत्म कर देंगे ताकि आपका सिर्फ एयर जाएगा अंदर। ओके, let's share the other slide because this guy has spoiled the whole slide. Now what should I show you? Studio it is. मैं आपको स्टूडियो दिखाता हूँ। I gave consultancy for this studio. I built this studio in Delhi only for my friends. So here what we did, हम लोगों ने, आप देख लो स्पीकर्स रखे, राइट। पूरा रूम कवर करा हमने, जो येलो कलर का है आपका, ये पूरा हमने वॉल्स कवर करे हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हुआ? रूम ट्रीट तो कर दिया आपने, आइसोलेशन तो कर दिया, अब रूम में ट्रीटमेंट कैसे करोगे? साउंड का जो रिफ्लेक्शंस है वो कैसे कम करेंगे हम लोग? ये ब्लू कलर का आपका जो पैनल्स लगे हुए हैं उसके ऊपर ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पॉइंट से निकाले यूजिंग दैट मिरर एंड टॉर्च मेथड। ठीक है, उसके हेल्प से हम लोगों ने इसमें ये वाले पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। एज यू ऑल कैन सी वी हैव इंस्टॉल्ड बेस ट्रैप्स एज वेल, स्पीकर्स के पीछे हैं। उसके बाद यहाँ पर दो पैनल्स हैं जो हमारे सेंटर में हैं, साथ में दो पैनल्स हैं। दिस वाज डन यूजिंग दैट टॉर्च एंड मिरर टेक्निक ओनली। ठीक है, नाउ मैं आपको मेरे साथ में जो रूम है मैं वो दिखाता हूँ जो मेरा खुद का है, where musicians are jamming right now. They are playing their own songs and jamming with them. And
I don't think you all can hear anything from that room. वहां पर अभी jamming चल रही है DJ based bands की. I installed a window here. If you want me to show you guys, wait a minute. मैं कैमरा उधर शो करता हूँ. है ना कितनी अच्छी चीज. उधर ढोल प्ले हो रहा है which is like the loudest instrument, right? Loudest percussion instrument, but you all can't hear because of the soundproofing, because of the isolation I did. Now I have this room. अब आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर, thank you so much, but please don't write on the slides because I like put all my efforts in getting this beautiful thing done. आप उसको खराब मत करो प्लीज रेडेड करके. अब ये जो नीचे वुडन हम लोगों ने चीज यूज की है, व्हाई डिड आई यूज वुडन एट द बॉटम? बिकॉज हमारे पास जब भी स्टूडियो में कोई आता है वो लीन ऑन करेगा वॉल के साथ, तो पीछे डैम्प नहीं होना चाहिए. सपोर्ट मिल गया. सेकेंड थिंग, आपका जो लो एंड है वो नीचे रहता है, वो ऊपर ट्रैवल इतना नहीं करता. मेरे पास ड्रम किट का पंच बहुत अच्छा मिलेगा मुझे नीचे. मेरा जो बेस एम्प का थ्रो है वो बहुत अच्छा मिलेगा मुझे. उसके ऊपर मैंने यहाँ पर सारी बॉल्स कवर करी, राइट, 1 2 एंड 3. आई डिडंट कवर दिस बाय बिकॉज मेरे को रूम को थोड़ा सा लाइव भी रखना है. मेरे को रूम को बिल्कुल डेड नहीं करना. इफ एन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर इज कमिंग इन माई रूम, उस इंस्ट्रूमेंट का जो एसेंस है, जो उसका फील है, वो डेड नहीं होना चाहिए. सो वी हैव टू कीप आवर रूम अलाइव टू. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दिस स्पेस. ओके, नाउ what are we left with? वोकल बूथ हो गया आपका, स्टूडियो सैंपल्स हो गए. अभी मेरे माइंड में एक चीज स्ट्राइक करी थी, बिल्कुल दिमाग से चली गई है. लाइव रखने के लिए, यस, डिफ्यूजर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब हमारे पास रूम में लाइव रखने के लिए हम लोग डिफ्यूजर्स को भी यूज करते हैं. अब डिफ्यूजर्स क्या है हमारे पास? दीज वुडन शेप्ड थिंग्स, राइट. अब डिफ्यूजर जो है ये क्या है? हमें रूम में साउंड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसके लिए हम लोगों ने डिफ्यूजर्स क्रिएट करे. डिफ्यूजर्स आर योर अनइवन ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर हमने इकट्ठे अनइवन ऑब्जेक्ट्स को रखा, अनइवन वुड लॉग्स को इंस्टॉल किया, जिससे हमारा साउंड जो है पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है. वी कैन यूज बुकशेल्फ फॉर दिस थिंग. बुकशेल्फ इसलिए होता है स्टूडियोज में. एंड आपके जो रूम में नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डिफ्यूजर्स का काम करेंगे. ठीक है. नाउ आपके रूम में अगर विंडोज एंड डोर्स हैं, आपको उसको ट्रीट करना है. वहां से बाहर का साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है? द ओनली थिंग यू कैन डू, इफ यू वांट टू एक्सेस द विंडो, तो आप वहां पर यूपीवीसी विंडोज यूज करो. डोर्स यूपीवीसी आर दी रिकमेंडेड वन. आपका एक डोर में भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन आ जाएगा उसमें, एंड दे लुक क्लीन एंड डिसेंट. अगर आप यूपीवीसी डोर्स नहीं लगाना चाहते और आपको लगता है आपका विंडो वहां से एक्सेस आपको नहीं करना, तो आप विंडो के ऊपर ग्लास वूल या रॉक वूल पूरा फिल इन करके उसके ऊपर वुडन पैनल इंस्टॉल करो. बिल्कुल उसको सील पैक करके उसके जो जितने भी एयर गैप्स हैं उनको पीओपी या फिर व्हाइट सीमेंट से क्लोज कर दो और उसके ऊपर दोबारा से साउंड एक अकूस्टिक पैनल इंस्टॉल कर दो. मेजर डिफरेंस, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. नाउ I am just taking a quick look at the questions because I have got 75 questions. Oh my gosh. I'll take a very quick look. Sound engineering is a good option, good profession to choose. You will like experience a totally new world. RT Analyzer is the app name. Yes.
लोज कवर अप करने के लिए मैंने आपको बताया मास आपका आइसोलेशन के लिए जरूरी है, और कॉर्नर में बेस स्ट्रैप्स। अगर आपका लो एंड बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा है तो आप कॉर्नर्स के पास वाली जो वॉल्स हैं तो उस पे आप 4 इंचेस के पैनल यूज करो। और लो एंड तब ट्रैवल करता है जब आपके पास रूम में या तो सब इंस्टॉल्ड है या फिर आपके जो मॉनिटर्स हैं उसका डायफ्राम का साइज बड़ा है, 8 इंचेस मॉनिटर्स हैं तो। रॉकवूल जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में ही आता है, वो एक बार की फॉर्म में आएगा। वो नॉर्मल कॉटन जैसा नहीं होता, बट आप उसको अगर खोलोगे, उसको आप प्लग आउट करोगे तो वो कॉटन जैसे ही आता है। वोकल बूथ्स के ऑप्शन हो गए। व्हाट अबाउट बेस वाइब्रेशंस इन बेसमेंट? मैंने बताया आप पीयू फोम यूज कर सकते हो। अगर आप ड्रम्स रखना चाहते हो बेसमेंट में तो उसके ऊपर एक वुडन, एक कमर्शियल बोर्ड रखकर उसके ऊपर ड्रम्स रखो। वुडन पीयू फोम, देन योर कमर्शियल बोर्ड, देन योर कारपेट, एंड यू आर डन विद इट। चीपेस्ट सॉल्यूशन। नहीं तो आपको क्लाउड बनाना पड़ेगा। क्लाउड फ्लोरिंग होती है हमारी, उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स खत्म किए जाते हैं साइड वॉल से, तब वाइब्रेशन खत्म होता है। रिफ्लेक्शन के लिए आपको टॉर्च और मिरर का यूज करना है। फर्स्ट आप मिरर से पॉइंट्स फाइनलाइज कर लो, उसके बाद सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए आपको टॉर्च का यूज करना है। बट फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मिरर ओनली। श्योर के माइक्स बहुत अच्छे हैं, बट दोज आर नॉट दी कंडेंसर माइक्स। कंडेंसर माइक डिफरेंट होते हैं। श्योर के डायनेमिक माइक्स आते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर मेकिंग एनी कंडेंसर माइक्स और नॉट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। केबल्स के लिए होल करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, केबल्स के लिए होल नहीं करेंगे हम लोग, वहां पर एक चैनल स्ट्रिप इंस्टॉल करेंगे जहां से हमारा केबल्स जो है, चैनल स्ट्रिप इंस्टॉल करते के साथ उस पर एक प्लेट इंस्टॉल होती है जो पूरी सील टाइट होती है, पूरी एयर पैक्ड होती है। उसके बाद उसके पीछे जो गैप होता है उसके अंदर हम लोग रॉक वूल फिल करते हैं, और आपका जो वहां से साउंड के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो स्नेक केबल यूज करते हैं। ज्यादा केबल्स नहीं यूज करते स्नेक केबल्स। इतनी केबल में आपके पास 24 केबल्स आ जाएंगी। वोकल बूथ का साइज आप उसका हाइट एटलीस्ट 8 फीट रखो, एटलीस्ट। और उसमें इतना स्पेस रखो कि आपका एक परकशन प्लेयर भी बैठ पाए नीचे, लाइक तबला और समथिंग, यू इफ यू वांट टू रिकॉर्ड दोस थिंग्स, तो आपका वो भी हो पाए, तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। रूम विद बिग विंडोज, अगर आपके पास रूम में ऑप्शन है तो आप यूपीवीसी विंडोज लगाओ। अगर आपके पास वुडन है तो आप उसमें वुडन में 2 साइडेड मिरर्स वाला उसमें फ्रेमिंग करवाना, और उसके अंदर आप अपना व्हाट डू वी कॉल देम, जो ग्लास होता है, टफन ग्लास, टफन ग्लास यूज करना। ठीक है। आई गेस जो फैन यामी मैम का था उसके लिए बहुत लोगों ने लिखा, बाहर निकालो। कितने लोग गुस्सा हुए यार बेचारे से, वो तो फैन था बेचारा। रोशनदान जिसमें है, रोशनदान के लिए आप वहां पे टफन ग्लास इंस्टॉल कर लो, आपकी रोशनी भी आएगी, रोशनदान का काम भी होगा, और आपका साउंड भी ट्रैवल नहीं करेगा। रक्षित, यू आर शोइंग सम ग्रेट मूव्स, आई अप्रिशिएट दैट, बट प्लीज आप जो मैं बता रहा हूँ अभी आप वो सुन लो। ग्रीन कलर वाली ये क्या कहते हैं, अब मैं भूल गया, सॉरी। As you are consulting, can you also talk about average cost for complete setup? See, it varies from, like आपका बेसिक कॉस्ट तो 50,000 कहीं नहीं जाने वाला, अगर आपको अच्छे से उसको ट्रीट करना और उससे अच्छा आउटपुट निकालना है। अगर आप कर्टन इंस्टॉल करते हो, कर्टन में आपका बहुत पैसा बच जाएगा, बिकॉज जो आपका वेलवेट कर्टन है वो आपका अगर आप होलसेल मार्केट से लेते हो तो आपको 1100 का मिल जाएगा, 9 फीट बाय 3 फीट का। ठीक है। आप वेलवेट के कर्टन्स लो, उसमें आपका सिर्फ क्या कॉस्टिंग आएगा, अगर आप किसी दूसरे फ्लैट में मूव आउट करते हो तो इंस्टॉलेशन का। कर्टन्स आपके फोल्ड होकर बैग में आराम से आ जाएंगे, पैनल्स नहीं आने वाले। गिव प्रेफरेंस टू कर्टन्स इफ यू आर स्टेइंग इन ए रेंटेड अपार्टमेंट। डोर के लिए आप यूपीवीसी यूज करते हो, गुड टू गो, एनी डे एनी टाइम। और अगर आप वुडन डोर से करना चाहते हो आप उस पे ट्राई करो, बट मैं आपको फिर कहूंगा आप वहां पे 2 साइड्स वाला
फ्रेमिंग इंस्टॉल करना जहां पर आपका डोर पूरा पैक हो, ठीक है। और गिव प्रेफरेंस टू यूजिंग 2 doors. My room is having 3 windows, 3 big windows on 3 sides. What can I do? Bro, change your room. That's the only thing you can do, because getting toughened glasses on all the windows will be like addition to your costing. KMMC is good for sound engineering. Yes, yes. ऊपर फॉल सीलिंग है जिप्सम की। जिप्सम की फॉल सीलिंग से मिड्स बूस्ट हो जाते हैं। तो आप अपने रूम में वॉल्स को अच्छे से कवर करना, like considering all the things I just told you in this session. और जिसको कोई चीज क्लियर नहीं है, प्लीज यू कैन अटेंड दी सेशंस एज मेनी एज like times you want to, you can. आपको उतना ही ज्यादा नॉलेज मिलेगा, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर ऑल द थिंग्स एंड ऑल द स्टफ यू आर लुकिंग फॉर एंड यू वांट टू गो फॉर। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, सो आपके लिए जितना पॉसिबल है आप उतना मेरे सेशंस अटेंड करो, बिकॉज देयर माइट बी सम थिंग्स व्हिच आई हैव मिस्ड इन दिस सेशन, जो मैं लास्ट सेशन में मैंने कवर कर लिया हो, या मैं अब नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूं। सो प्लीज अटेंड ऑल द सेशंस, यू विल गेट द नॉलेज, राइट। आपका जो फायदा है वो आप जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे उसमें है। आप स्टूडियो बनाने में कभी भी जल्दी नहीं करना। आई ऑलवेज से इन माई सेशंस, पेशेंस ओवर प्रैक्टिस, पेशेंस इज द की। आप जितना पेशेंट रहोगे अपनी चीजों को लेकर, अपने आर्ट को लेकर, यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम योर art from your room. Guys, that's all from my side. I am done. If you want to know about the equipments, please attend my next session, which will be on the next Sunday most probably. That's all I have for today's session. If I have missed something, I'll try my best to cover in the next session. Hope to see you guys again and soon. Till then, take care of yourself, your family members, and stay happy. Bye bye. Thank you so much, Arshit. Thank you, everyone. That's it for today. We'll see you tomorrow. Bye bye.